منگل 16 ستمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ خلیج تعاون کونسل نے قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو خلیجی ممالک کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دے دیا۔ This has been the practice of the Israelis to this day. If bringing the war to a halt will be met with the release of their captives, it is not what they want. دوحہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ Here, under the gleaming lights of a summit hall, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman meets with Iranian President Masoud Pezeshkian. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنما جہاں بھی ہوں گے انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ So we'll continue to do what we can to make sure that they're out of harm's way, and we'll complete our mission, which is to free all our hostages, get them all back, and make sure that Hamas is eliminated. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ۔ We've identified the President, the Prime Minister Netanyahu, and the former Minister of Defense, based on their statements and the orders that they've given. So we have identified individuals. کوئٹہ کے رضاکاروں کا سنگلاخ پہاڑوں کو سر سبز بنانے کا عزم۔ کیونکہ جب ہم لوگ یہاں پر پہلے جب ہائکنگ کے لیے آتے تھے تو ہمیں یہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، نہ کوئی جگہ سائے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے سایہ تھا، تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ چیزیں دیکھے تو مجھے میرے دوستوں کو یہی خیال آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ درخت لگانا شروع کریں۔ دبئی میں خواتین کا استحصال، سیکس رنگ چلانے والے شخص کا انکشاف، اور جانیے سود پر قرض دینے والے اس شخص کے بارے میں جس کا آدھا لاہور مقروض تھا۔ یہ عمارت ساہوکار بلاقی شاہ کی ہے جو لاہور کے زمینداروں سے لے کر عام ضرورت مندوں کو سود پر قرض دیتے تھے۔ اس بلڈنگ پر لکھا ہوتا تھا بلاقی مل اینڈ سن بینکرز لاہور۔ اس کے علاوہ دیگر خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل ہوں گی، مگر پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ قطر پر اسرائیلی حملے پر تبادلہ خیال کے لیے پیر کے روز خلیج تعاون کونسل یعنی GCC کی سپریم کونسل کا دوحہ میں ایک غیر معمولی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران GCC رہنماؤں نے رکن ممالک کی مشترکہ دفاعی کونسل کو ہدایت کی کہ وہ دوحہ میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے، جس سے قبل سپریم ملٹری کمیٹی کے اجلاس میں GCC کی ریاستوں کی دفاعی صورتحال اور خطرات کے ذرائع کا جائزہ لیا جائے۔ انہوں نے یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کو مشترکہ دفاعی میکانزم اور خلیجی ڈیٹرنس کی صلاحیتوں کو فعال کرنے کے لیے ضروری انتظامی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سپریم کونسل کا کہنا تھا کہ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت خلیجی ممالک کی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ سپریم کونسل نے سلامتی کونسل، عالمی برادری اور با اثر ریاستوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پوری ذمہ داریاں سنبھالیں اور ان خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغید نے کہا کہ ہم ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب خطے کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ اجلاس میں اسرائیل کی شدید مذمت بھی کی گئی، تاہم یہ سوال باقی ہے کہ کیا یہ اجلاس محض مذمت سے آگے کوئی عملی قدم بھی اٹھا پائے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے عارف شمیم نے۔ گزشتہ ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کے فضائی حملے کے رد عمل میں عرب اور اسلامی ریاستوں کا ہنگامی اجلاس قطر میں ہو رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی طرف سے دیکھی جانے والی ایک قرارداد کے مسودے کے مطابق اس میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے، جن میں بڑے پیمانے پر قتل عام، نسل کشی سمیت لوگوں کو بھوکا رکھنا شامل ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات سے امن اور بقائے باہمی کے امکانات کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نے ایسے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوئی عملی فیصلے کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی قسم کے فوجی رد عمل کا ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اتوار کو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد عبد الرحمن الثانی نے دوحہ میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے بند کمرے کے اجلاس کے دوران بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنا دوہرا معیار ترک کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیز اسرائیل کو اپنا طرز عمل جاری رکھنے کے لیے ترغیب دیتی ہے وہ عالمی برادری کی خاموشی اور اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے میں اس کی ناکامی ہے۔
दूसरी तरफ अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो यरूशलेम में इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें तवक्को है कि कतर में इसराइल के हमले का एजेंडा सर-ए-फहरिस्त हो सकता है। गुज़श्ता हफ्ते का हमला, जिसमें हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया था, बैनुल-अक़वामी गम-ओ-गुस्से का बाइस बना और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे तनकीद का निशाना बनाया। पीर के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान के इजलास के मौका पर सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात भी हुई है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 9 सितंबर को इसराइल की तरफ से कतर पर किए जाने वाले फ़ज़ाई हमले पर तबादला ख्याल किया है। गुज़िश्ता हफ्ते दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद अरब और इस्लामी रहनुमा कतर में हंगामी सरबराही इजलास के लिए जमा हुए थे। सरबराही इजलास में अपनी तकरीर में मसूद पेज़ेश्कियान ने दोहा पर इसराइली हमले को ढिठाई, मनसूबाबंदी और सफारतकारी पर हमला करार दिया और कहा कि इसका मकसद गजा में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों को सबोताज करना था। उन्होंने ये भी कहा कि ये अमेरिका और कुछ मगरबी ममालिक की मिली भगत है। उन्होंने इसराइली हुकूमत के रहनुमाओं के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमा चलाने का मुतालबा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि दोहा पर हमले से जाहिर होता है कि कोई भी इस्लामी या अरब मुल्क इसराइली जारहियत से महफूज नहीं। इस इजलास के आगाज़ में कतर के अमीर और इजलास के मेज़बान तमीम बिन हमदुसानी ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसराइल अरब दुनिया को अपने ज़ेर असर लाना चाहता है। कतर के अमीर का ये भी कहना था कि दोहा पर इसराइली हमले का मकसद गजा मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करना था। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में गुज़िश्ता हफ्ते के हमले के बाद हमास के रहनुमाओं पर मज़ीद हमलों का इम्कान मुस्तरद नहीं किया है और कहा है कि वो जहां भी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। पीर के रोज़ यरूशलेम में अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि हर मुल्क को अपनी सरहदों से बाहर भी अपने दिफा का हक हासिल है। Or some nations cannot do it in this part of the world, but they can do it in another part of the world. And of course, the United States acted very boldly against the terrorist havens that were given to Al-Qaeda in Afghanistan, the terrorist haven that was given to the chief terrorist, Bin Laden, in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. The sovereignty of Afghanistan. कतर में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने के इसराइल के फैसले पर इसे न सिर्फ बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से गम व गुस्से बल्कि अपने सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ा था। हमास का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के इसराइली हमले में 6 अफराद मारे गए थे, लेकिन उसके रहनुमा बच गए थे। नेतन्याहू के इस बयान से महज एक रोज कबल व्हाइट हाउस ने बताया था कि सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। Intimidate people? We're not bringing down those towers to intimidate people. Those towers are serving as Hamas strongholds. But what we're doing is we're telling the population, because we're going to take over and destroy the Hamas stronghold. They're one of the last 2 strongholds and the most important one that Hamas has left. अक़वामे मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन का कहना है कि इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है। तहकीकाती कमीशन की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके पास वाज़ेह शवाहिद हैं कि 2023 में गजा जंग के आगाज़ के बाद से इसराइल बैनुल अक़वामी कानून में बयान करदा नस्ल कुशी के 5 में से 4 इक़दामात का मुर्तकब हुआ है। इसराइल को नस्ल कुशी के जिन इक़दामात का मुर्तकब करार दिया गया है, उनमें किसी मखसूस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का कत्ल, उन्हें शदीद जिस्मानी और ज़हनी नुकसान पहुँचाना, जानबूझकर किसी ग्रुप को तबाह करने के लिए हालात पैदा करना और बच्चों की पैदाइश को रोकना शामिल है। रिपोर्ट में नस्ल कुशी के इरादे को साबित करने के लिए इसराइली रहनुमाओं के बयानात और इसराइली अफवाज के तर्ज अमल का हवाला भी दिया गया है। We've identified the President, the Prime Minister Netanyahu, and the former Minister of Defense, based on their statements and the orders that they've given. So we have identified individuals. We have not done an investigation of all the individuals involved. I think future work by the Commission will get down to that. We're not dropping anything.
Because these three individuals were agents of the state, under the law, the state then is held responsible. So we say it's a state of Israel that has committed genocide. दूसरी जानिब हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत का कहना है कि गजा जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 64,905 अफराद हलाक हो चुके हैं। गजा की ज़्यादातर आबादी मुतअद्दिद बार बेघर हो चुकी है, जबकि अंदाजे के मुताबिक 90% से ज़्यादा घर या तो तबाह हो चुके हैं या उन्हें नुकसान पहुँचा है। सेहत की सहूलियात, पानी, सफाई और हिफाज़ान सेहत के निज़ाम तबाह हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता फूड सिक्योरिटी माहिरीन ऐलान कर चुके हैं कि गजा शहर कहत का शिकार है। इसराइल की वजारत खारजा ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे मस्ख शुदा और झूठ का पलंदा करार दिया है। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान ने कमीशन में शामिल तीनों माहिरीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो हमास की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट के लिए मुकम्मल तौर पर हमास के झूठ पर इन्हिसार किया है। पाकिस्तान के शहर कोयटा के अतराफ मौजूद संगलाग पहाड़ों को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए कोयटा के रज़ाकार अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुकामी नौजवान और समाजी कारकुनों ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके और शहर को खुशगवार फ़िज़ा फराहम हो। मज़ीद तफसील मोहम्मद काज़म और खैर मोहम्मद से। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पहले जब हाइकिंग के लिए आते थे तो हमें यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ना कोई जगह साए के लिए, ना बैठने के लिए साया था, थोड़ा रिलैक्स हो सके। चीज़ें देखे तो मुझे मेरे दोस्तों को यही ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग दरख्त लगाना शुरू करें। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ से घरों से जो बड़े बड़े जरीकेन उठाते हैं 30-30 लीटर के, फिर उनको मोटरसाइकिल पे बांध के फिर वहाँ से ट्यूबवेल से इनको पानी भर के, क्योंकि नज़दीक यहाँ पर कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, तो हम दूर से कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास सवारी नहीं होता, तो फिर वही कंधों पर ही इन जरीकेन को उठा कर लाना है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो दरख्त लगाए हैं तो इनका पानी देना भी हम लोगों का फ़र्ज़ है। सरसब्ज़ तो वैसे भी आंखों को पसंद होता है, तो जैसे ही हमारे सामने आते हैं हमारी सारी थकन जो हम वहाँ से पैदल करके यहाँ से मोटरसाइकिल पे ये जरीकेन उठा के, तो सारी जैसे ही पहुँचे हमारी सारी थकन दूर हो जाती है। अभी जो हम लोग इधर आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, सरसब्ज है, साये में बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं। पहले इधर कुछ नहीं हुआ करता था, अभी देखो दरख्त बन गए, साये बन गए, हर कोई अपने फैमिली के साथ आता है, इधर पिकनिक मनाता है। कितने जगह में दरख्त नहीं है, हम लोगों ने कभी लगा दिया। गुलिस्तान टाउन अभी लगा दिया। कोई किसी में मेरा पैसा मैसा नहीं दिए, हम पैसा नहीं चाहिए, पैसा क्या वो अल्लाह से चाहिए। साया न था, वो चलता दे गर्मी हो, साया नहीं, वो दरख्त लगा दिया। वो दरख्त देखो साया भी है, वो मेवा दाना तो अभी है, वो अभी खाओ, उधर से बैठो। दुलवाइद का बिल्कुल तना वही थे, देखो वही कैसे। बीबीसी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि दुबई के पुरताइश इलाकों में एक सेक्स रिंग खवातीन का इस्तेसाल कर रहा है। युगांडा से ताल्लुक़ रखने वाली मुतअद्दिद खवातीन ने बताया कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर दुबई बुलाया गया, जहां उन पर जिनसी काम मुसल्लत किया गया। खवातीन ने दावा किया कि नेटवर्क का सुरगना ग्राहकों की अजीबो गरीब और जिल्लत आमेज ख्वाहिशात पूरी करने पर मजबूर करता है। तहकीकात के मुताबिक इस नेटवर्क से जुड़ी 2 खवातीन बुलंद इमारतों से गिरने के बाद हलाक हुई हैं, ताहम उनके खानदानों ने इन अमवात को मशकूक करार दिया है। नेटवर्क के सुरगना ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है, जबकि दुबई पुलिस ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। समाजी कारकुनों का कहना है कि खलीजी ममालिक में नौकरी के नाम पर लाई जाने वाली खवातीन के साथ ऐसे वाक़यात आम हैं और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत भी है। सामीन बर्रे सगीर की तकसीम से पहले लाहौर में बुलाकी मिल, जिन्हें लोग इज्जत से बुलाकी शाह कहा करते थे,
एक बाअसर साहूकार के तौर पर जाने जाते थे। वो ज़रूरतमंदों को सूद पर कर्ज देते थे और उनके कर्जदारों में बड़े बड़े जमींदार भी शामिल थे। बुलाकी शाह सिर्फ मुसलमानों ही में नहीं बल्कि दीगर बिरादरियों को भी कर्ज दिया करते थे। BBC ने तारीख दानों और मुख्तलिफ किताबों की मदद से ये जानने की कोशिश की है कि बुलाकी शाह कौन थे और उनके कर्जदार कौन लोग थे और आज उनका ख़ानदान कहाँ है। बुलाकी शाह भले ही सूद पर कर्ज देते थे, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो कभी भी किसी को नाउम्मीद नहीं करते थे। उनके बही खातों या रजिस्टर्स पर बड़े बड़े ज़मींदारों के अंगूठे या दस्तखत होते थे। लाहौर की कीमती ज़मीनें उनके पास गिरवी रखी होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो ख़वातीन को बहुत इज्जत देते थे। उनके घर में ख़वातीन के लिए अलग मसनद थी जिस पर वो उन्हें इज्जत व एहतराम से बिठाते थे, फिर उनकी ज़रूरत दरियाफ्त करते। ख़वातीन उनके यहाँ आती तो बुरखे में थी, मगर ख़ुद को इतना महफूज समझती थी कि बुरखा उतार कर एक तरफ रख देती थी, अपनी ज़रूरियात बताती और रकम ले जाती। अगर कोई कर्ज के एवज़ अपना जेवर रखता तो लाला बेफिक्र हो जाया करते थे। पंजाब की उस दौर की माशी सूरत हाल का अहाता करते हुए मौर्रिख इश्तियाक अहमद अपनी किताब द पंजाब ब्लडिड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड में लिखते हैं कि समाज का हर तबका किसी न किसी सतह पर साहूकार का मखरूज था, लेकिन मुसलमानों को उसकी माशी गिरफ्त सबसे ज़्यादा खटकती थी। उनके मुताबिक लाहौर की बुलाकी शाह उस आम साहूकारी निज़ाम की बेहतरीन मिसाल समझे जाते थे जिनके सामने बड़े से बड़ा ज़मींदार भी मखरूज नज़र आता। मुनीर अहमद मुनीर अपनी किताब मिटता हुआ लाहौर में मोची दरवाजे के रिहायशी हाफिज़ मिराजुद्दीन के हवाले से लिखते हैं कि 100 रुपये लोगे तो वो पहले 3 माह का सूद काट लेगा। बुलाकी शाह ज़िबा करता था सूद पर पैसे देकर। दानिशवर अब्दुल्ला मलिक अपनी किताब पुरानी महफिलें याद आ रही हैं में लिखते हैं कि बुलाकी शाह से अक्सर मुसलमान ज़मींदार या निचले दरमियानी तबके के सफ़ेद पोश कर्ज लेते थे। यहाँ तक कि हमारा ख़ानदान भी बुलाकी शाह का मखरूज था। वो लिखते हैं किताब मिटता हुआ लाहौर में ही सियासतदान और वकील सैयद अहमद सईद किरमानी के हवाले से लिखा गया है कि बुलाकी शाह के मकरूज अफराद में सूबे पंजाब के दूसरे वज़ीर आला और सियासतदान मियाँ मुमताज़ दौलताना के वालिद खान बहादुर अब्दुल यार दौलताना भी शामिल थे। अंग्रेज़ी ज़बान की एक मैगज़ीन द पाकिस्तान रिव्यू के सन 1971 के एक शुमारे में एक मज़मून निगार जिनका नाम वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया है, वो कहते हैं कि 1920 की दिहाई के वस्त में मेरे दादा हाजी अहमद बख्श जो एक फ़ारसी शायर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दोस्त थे, उन्होंने लाहौर में अपनी 65 कनाल ज़मीन बेचने का इरादा किया। ये ज़मीन 20,000 रुपये के एवज़ लाहौर के सबसे बड़े साहूकार बुलाकी शाह के पास रहन थी। वो लिखते हैं कि मेरे बड़ों की बिगड़ती माली हालत पर शायद फिक्रमंद होकर अल्लामा इकबाल ने मेरे दादा को ज़मीन बेचने से सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि ज़मीन को किसी न किसी तरह से बचाओ, बेहतर है कि तुम कुछ जेवर बेच दो या फिर अपने चंद मकान फरोख्त करके बुलाकी का कर्ज अदा कर दो। वक्त के साथ साथ तुम्हारे पोते ख़ानदान की बिगड़ी किस्मत को संभाल लेंगे। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि मेरे दादा ने उनकी नसीहत पर कान न धरे। सन 2013 में 104 साल की उम्र में वफात पाने वाले फोटो जर्नलिस्ट F.A. चौधरी ने अब वो लाहौर कहाँ के उन्वान तले छपे अपने तवील इंटरव्यू में सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को बताया कि बुलाकी शाह बड़े लोगों को बड़ा कर्ज दिया करते थे। मजंग के जितने बड़े भी शाह थे उनकी हवेलियां बुलाकी शाह के पास गिरवी थी। F.A. चौधरी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बुलाकी शाह के बच्चे सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ते थे। पीटर ओबोर्न अपनी किताब वुंडेड टाइगर अ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि बुलाकी शाह क्रेसेंट क्रिकेट क्लब के बड़े सरपरस्तों में से एक थे। ये क्लब लाहौर के मोची दरवाजे के क्रिकेट के शायकीन रिहायशियों ने बनाया था और लाला अमरनाथ इसके मशहूर तरीन खिलाड़ी थे। बुलाकी शाह के अपने कुछ कर्जदारों के साथ होने वाले झगड़े शेख लिखते हैं कि मुझे याद है कि मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान बनने से पहले बुलाकी शाह के पोते लाटो शाह या राम प्रकाश उनके हमजमात और कॉलेज की क्रिकेट टीम में उनके साथी थे। लाटो और बाद में सहाफ़ी बनने वाले मजहर अली खान सिर्फ 2 ऐसे तालिबे इल्म थे जो अपनी कारों में कॉलेज आते थे। लाटो सिर्फ रेशमी लिबास और मजहर अली खान खद्दर का लिबास पहनते थे। तक़सीम हिंद पर बुलाकी शाह के ख़ानदान को लाहौर से हिजरत करना पड़ी और जब फसादात शुरू हुए तो कर्जदारों के रजिस्टर के सफ़हात लाहौर की नालियों में कटे फटे पाए गए थे। मजीद शेख ने लिखा कि इंडिया में बुलाकी शाह ने अपने रजिस्टर फाड़ दिए और कहा
کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ثنا مہرا انڈیا کے دہرادون شہر میں رہتی ہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کرتی ہیں کہ بلاقی شاہ ان کے پردادا تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی آخری وارث ان کی دادی شریمتی وجے لکشمی مہرا کورونا کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ شادی سے پہلے ان کا نام راما کماری تھا۔ وہ ہمیشہ گمٹی بازار، وکٹوریہ اسکول، نونیہال حویلی اور دوسری یادوں کا ذکر کرتی اور زندگی کے آخری لمحے تک لاہور جانا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے نہ جا سکی۔ وہ 1929 میں لاہور میں پیدا ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جب بلاقی شاہ نے گمٹی بازار میں 4 منزلہ عمارت تعمیر کی تھی۔ آج کل وہاں جوتے بنتے ہیں۔ نیچے 4 دکانیں ہیں جو چمڑے سے متعلق اشیاء مثلاً جوتے وغیرہ کا کاروبار کرتی ہے۔ ایک رنگ اور کیمیکل کی دکان بھی ہے۔ لاہور کی گمٹی بازار میں جہاں یہ بوسیدہ عمارت واقع ہے، وہاں کے زیادہ تر لوگوں کو شاید آج یہ معلوم بھی نہ ہو کہ اس کا مالک بلاقی شاہ کون تھا، یعنی وہی شخص جن کا آدھا شہر مخروص تھا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحر بین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔